Hi guys, welcome back to another vlog and today we are going to Masinaguri. हम जा रहे हैं बैंगलोर से मसीनागुड़ी एंड वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वी विल बी गोइंग फॉर जंगल सफारी. तो चलिए चलते हैं. Hi guys, welcome back to another vlog and in this episode we are going to visit a place near Bangalore. So after a full year of hard work, we colleagues decided to travel to a place near Bangalore. So we decided to travel to Masinaguri, which is located in the buffer zone of Madumalai Tiger Reserve. Masinaguri is a village which lies in the foothills of the Nilgiris mountains. So we decided to book a resort and enjoy one night in this beautiful place. So it takes 6 to 7 hours with 2 or 3 stops in between. So we started quite early and we had to travel almost 6 hours. We are at a place called the Swat and यहाँ पे होटल एट्रियम है. तो यहाँ पे आप रह भी सकते हैं एंड साथ ही साथ इनका जो रेस्टोरेंट है स्वाद, वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं. एंड इट इज़ ऑन द वे टू मैसूर. ऑलमोस्ट वी हैव रीच मैसूर. तो मैसूर के पास पहुँचते पहुँचते ये होटल आता है द एट्रियम एंड रेस्टोरेंट इनका है एंड यू गेट गुड फूड. वी हैड बुफे देयर एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ऊटी की तरफ मसीनागुड़ी. So once you move from Bangalore, you go towards Mysore and then you go towards the Bandipur National Park and you cross the Bandipur National Park and enter the Madumalai Tiger Reserve. So once you leave Bangalore and Mysore, you enter a green forest area. So you cross one forest area in Karnataka and enter the next one in Tamil Nadu. So this is the border area where we leave Karnataka and enter Tamil Nadu, and we straight away go towards the route which connects us to Madumalai Tiger Reserve. So at this place they check your cars and you're not supposed to keep any plastic items with you, and in case you have, you are asked to throw away the bottles, etc. And then you can move on to the Madumalai Tiger Reserve area. So Madumalai is famous for the Madumalai wildlife safari. So you can book that beforehand or you can tell your resort to book it. So our resort had already booked a jungle safari for us and we had decided to go there after having lunch in the resort and relaxing for some time. So now we have almost reached our resort and after traveling for 6 to 7 hours we were tired and we were heading into our rooms. So this is our stay for tonight and each room has 2 queen size beds which are quite comfortable. The room does not have AC but they have fans and also there is a attached washroom. So there is also a geyser in the washroom. So there is a covered private sitting area also outside. So these are the other cottages. तो आफ्टर जर्नी ऑफ 6 आवर्स हम पहुंच गए हैं एट रोवर रिसोर्ट एंड यहाँ पे वी विल बी स्टेइंग फॉर अ नाइट एंड अभी हम जाएंगे सफारी के लिए. सो गाइज वेलकम टू रोवर रिसोर्ट. यहाँ हम आए हैं मधुमलाई टाइगर रिजर्व में. ये रिसोर्ट है एंड यहाँ से हम वी विल बी गोइंग फॉर अ टाइगर सफारी. सो लेट मी शो यू अराउंड कैसा है रिसोर्ट. ये है रूम्स. ये है फर्स्ट रूम, ये सेकेंड एंड दैट इज़ द थर्ड रूम एंड भी रूम्स हैं एंड पार्किंग भी बहुत सारी है. सो बेसिकली इट्स लाइक स्टेइंग इन अ जंगल एंड दैट्स द व्हीकल वी केम इन. सो द जर्नी फ्रॉम बैंगलोर टू दिस प्लेस विच इज़ around 80 kilometers away from Ooty took us around 6 hours. उसमें हमने एक ब्रेक भी लिया, ब्रेकफास्ट ब्रेक एंड now we have reached and we started early morning. So अभी हम यहाँ पहुँचे 12:30 बजे. दिस इज़ एक्चुअली हम जंगल के अंदर ही रह रहे हैं एंड आई थिंक उधर उनका डाइनिंग हॉल है और ये एक और रूम है. यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं एंड यहाँ पे अभी हम लंच के लिए जा रहे हैं और लोकल लोग ही यहाँ काम करते हैं. सो लंच में उन्होंने सर्व किया वेज एंड नॉन वेज फूड टू अस. सो गाइस दिस इज़ द व्यू. यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है और ऊटी बहुत पास है यहाँ से, 1 घंटे का रास्ता है एंड दे बिल्डिंग सम न्यू थिंग्स हियर. बनाया है बॉनफायर पिट एंड ये है अनदर रूम. चलो जाके देखते हैं कैसा ये रूम.
Wow, this room is nice. A little better. यहाँ पे ना एक पूल भी है, so you can go inside the pool and enjoy. तो पानी वानी तो है, बट यहाँ पे एक गाय भी घूम रही है. सो ये है यहाँ का पूल. बेसिकली इन्होंने सारी फैसिलिटीज़ यहाँ दी हुई है एंड थोड़ा अर्ली स्टेज है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है इनका, बट ठीक है टू स्पेंड द नाइट. एंड व्यू बहुत ही सुंदर है यहाँ से, आप देखिए, यू कैन सी द व्यू. सो दिस इज द व्यू. पार्किंग एरिया और यहाँ इन्होंने झूला वूला भी लगाया हुआ है. सो गाइस, अब हम चल पड़े हैं फॉर टाइगर सफारी तो नहीं, जंगल सफारी. और वहाँ जाके फिर देखते हैं कितने एनिमल्स दिखाई देते हैं. तो आप ये रेडी फॉर द जंगल सफारी? So the first place we were going to visit was a viewpoint from where we could see the three states, that is Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. And ये हमारा एक off-roading experience था and काफ़ी मतलब it was a difficult climb. So right now we are at a point where you can see three states from here. On the front there Tamil Nadu and Ooty is part of that. And on the back you can see Karnataka and Kerala. So this is the point where you can see all the three states. तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है. ये सारी जीप्स हैं एंड ये रास्ता काफ़ी बड़ खाबड़ था, ऑफ रोडिंग टाइप था. एंड नाउ वी आर गोइंग टू द रियल जंगल सफारी. सो यहाँ पे एक टेम्पल भी है जो आप विजिट कर सकते हैं. एंड मोस्टली सारे जो जीप सफारी वाले हैं यहाँ आते हैं एंड आपको ये पॉइंट ज़रूर दिखाते हैं. चलो सब, अब हम नीचे जा रहे हैं. जंगल सफारी और देखते हैं क्या दिखाई देता है हमें. हाँ, जानवर यहाँ पानी पीने आते होंगे. हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे कोकोनट प्लांटेशंस भी है एंड यू कैन ऑलवेज स्टॉप फॉर अ कोकोनट वाटर. और थोड़ी दूर आगे जाते ही हमें एक भालू भी दिखाई दिया. So this was another pit stop and we stopped here for coconut water and also there was a water body here. तो यहाँ animals spot करना बहुत ही आसान था. That's what our driver told us. So now we started our journey back because
यहाँ के भी टाइमिंग होते हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम द जीप्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। एंड वापस जाते समय भी हमने कुछ एनिमल स्पॉट किए। And then we spotted an elephant from far drinking water in the water body. So we were quite lucky to see so many animals. After this wildlife safari, we headed back to our resort. We were tired and then we had some time with friends. And the next morning, we got up for a trek to a nearby hill, which was also very nice. देखिए ये है रिसोर्ट की एंट्री और ये है रूम्स। इफ यू सी काफी जगह है इनके पास, भी ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रूम्स का। ये रूम हो गया और एक ये रूम, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 6 रूम्स हैं, बट आई थिंक दे मेकिंग मोर बिकॉज डिमांड है यहाँ पे। आई थिंक दिस इज़ द मेन एंट्रेंस और ये है उनका घर, उनका पर्सनल घर। सो दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू रिसोर्ट का। भी हम नाश्ता कर चुके हैं, वो हमारी गाड़ी है और हम थोड़ी देर में उस गाड़ी में जाएंगे। सो यू नो बैंगलोर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह है। अगर आप जाते हैं ऊटी की तरफ तो यू हैव द बांदीपुर एंड देन मधुमलाई टाइगर रिजर्व। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली वर्थ इट। यू कैन प्लान अ ट्रिप विद योर फैमिली और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट है जहाँ पे आप रह सकते हैं। सो गाइज अभी टाइम हो गया है वापस जाने का। सो इट वॉज अ 1 नाइट स्टे हियर एट रोवर रिसोर्ट, रोवर रिसोर्ट इन मसीनागुड़ी एंड इट वॉज अ नाइस स्टे विथ फ्रेंड्स एंड हमने बहुत इंजॉय किया। रात को बॉनफायर, म्यूज़िक एंड डांस and khana. So all the food was provided by the resort. Even the tiger safari, the jeep safari we went for was provided by the resort. उसके बाद सुबह ट्रैकिंग के लिए भी हम गए, जो मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाई। एंड देन दे ऑल्सो यू कैन गो टू यू नो एलिफेंट कैंप फ्रॉम हेयर, जहाँ पे आप फीडिंग एंड एनिमल्स को नहलाना जो होता है वो सब कर सकते हैं। सो इट्स अ नाइस शॉर्ट स्टे। अगर आप आना चाहे तो 1 या 2 दिन प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। So till we meet again, keep enjoying life, stay safe and stay connected.